Hello students, in the previous lecture number 1 on this chapter line and plane, we have discussed the two forms of equations of line. Both we have written in vector form and Cartesian forms. Now, 3 more points we want to discuss. Examples on 6.1 you must have completed. For 6.2, 3 more points. First, distance of a point from the line. उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा? Point and a line. लाइन दी जाएगी मतलब उसका इक्वेशन दिया जाएगा, either in vector form or in Cartesian form, either in the first form or in the second form. First form मतलब passing through point and parallel to the vector b bar. Second form मतलब passing through 2 points. तो इसमें लाइन को हम कंसिडर करेंगे वेक्टर फॉर्म में. सिंपलेस्ट फॉर्म आर बार इज इक्वल टू लाइन यल will have equation r bar is equal to a bar plus lambda times b bar. इसका मतलब this line is passing through the point a whose position vector is a bar and parallel to the vector b bar. This is vector b bar. Suppose one point is given to you whose distance we have to find from this line. तो वो पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दे सकते हैं या फिर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में. पोजीशन वेक्टर ये वेक्टर फॉर्म में तो उसको भी वेक्टर फॉर्म में लेंगे हम. तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P whose पोजीशन वेक्टर इज P बार या R बार या अल्फा बार, जो भी लेते हो. That statement we write in terms of the theorem. छोटे छोटे theorems whose proofs are not expected in the examination, only formally we derive. This will be theorem number 5. इसके पहले 4 हो गए. Which gives you the distance of the point, which point P whose position vector is alpha bar, from which line? From the line r bar is equal to a bar plus lambda b bar is given by that distance is always positive. Formula is under root of, यहाँ जो ए पी बार आप तैयार करोगे वेक्टर, ए पी बार पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, अल्फा बार माइनस ए बार, उसकी जो लेंथ रहेगी मतलब मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देंगे हम इस क्वांटिटी का स्क्वायर.
दिस वेक्टर अल्फा बार माइनस ए बार इसका डॉट प्रोडक्ट बी बार के साथ, बी बार इज द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन divided by the magnitude of b bar square of that। तो ये फॉर्मूला कैसे मिलता उसका भी प्रूफ हम शॉर्ट में दे देते। इसमें आपको गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, let us rewrite given point, we write it is in the form of position vector। The line is passing through the point A having position vector A bar and parallel to the vector B bar। तो आपको अगर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन चाहिए तो निकालो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Length of this perpendicular is nothing but the distance। Let PM be perpendicular to the line। What is M? M is the foot of perpendicular। तो ये ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें 3 साइड्स में से आप कौन कौन सी साइड्स निकाल सकते? ये पीएम तो हमको निकालना है, दैट इज अवर एम टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। रहा सवाल है दो डिस्टेंसेस का, ये तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि ए पी बार दिस इज नथिंग बट अल्फा बार माइनस ए बार। तो उसकी लेंथ and magnitude of the vector वो तो हम निकाल सकते हैं। रहा सवाल AM का, तो this AM, this is nothing but the projection of this vector on this line। On this line means on the vector parallel to that line। Parallel vector is B bar। B bar इधर हो, ऊपर हो, नीचे हो, लाइन पे हो, लाइन पे भी ले सकते हैं उसको हम। तो you can say that this AM is nothing but the projection of AP bar projection of one vector on another vector। Projection of AP bar on B bar means it is on line L। Line L is parallel to the vector B bar। तो प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर अगर निकालना है तो हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ए पी बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर ऑन विच द प्रोजेक्शन इज ड्रॉन। ये फॉर्मूला हमने लिखे थे स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करने के बाद। ए पी बार को आप अल्फा बार माइनस ए बार
लिखे हो, डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो ये एक प्रकार की लेंथ हो गई ए एम की। तो पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट दिस पी एम स्क्वायर is nothing but AP square minus AM square. This is by Pythagoras theorem. So what will be PM, जिसको हम distance of the point P from the line बोल रहे हैं, that will be under root of this difference of the squares. AP का मतलब magnitude of अल्फा बार माइनस ए बार होल स्क्वायर माइनस AM का मतलब अल्फा बार माइनस ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर। This is what we were searching, distance of the point from the line। उसके बाद में सेकंड डिस्टेंस हम निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम द लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस बोल सकते हैं हम। अब वो टू लाइंस भी या तो कोप्लेनर रहेगी, नहीं तो नॉन कोप्लेनर रहेगी। कोप्लेनर में भी दो चांसेस, जैसे दो लाइन से एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में है दोनों लाइंस, तो पहला चांस कौन सा, इस प्रकार की होंगी दो लाइंस। मतलब आगे बढ़ाते तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगी, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। और दूसरा चांस, दे डू नॉट इंटरसेक्ट, कितने भी दूर जाएंगे तो भी सच लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल। तो कोप्लेनर लाइंस के दो चांसेस, इन दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है, जो इंटरसेक्टिंग है, तो उसमें डिस्टेंस बनेगा 0, क्योंकि आगे का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर नो डिस्टेंस। और पैरेलल लाइंस में जो डिस्टेंस रहेगा, कोई भी एक पॉइंट अगर पहली लाइन पे लेते तो वहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। कहीं से भी आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो पैरेलल लाइंस होने के कारण वो डिस्टेंस सेम रहेगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए डिस्टेंस 0, पैरेलल लाइंस के लिए डिस्टेंस कुछ तो भी रहेगा, उसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। दूसरी केस में when the two lines are not coplanar, एक है मान लो इस प्लेन में, दूसरी लाइन है इस प्लेन में, एक लाइन लेंगे हम इधर, दूसरी लाइन लेंगे इधर।
जैसा एक क्यूब लेंगे या फिर रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप लेंगे, ये लाइन है ऊपर के प्लेन में, और एक आधी दूसरी लाइन अगर तुम लेते along the diagonals, they are not coplanar. So such lines are called skew lines. And the distance between these skew lines, how to find? That will be our question. Distance between skew lines, और वहां पर skew lines का मीनिंग हम लिखेंगे नहीं, डेफिनेशन। स्क्यू लाइन्स अगर डिफाइन करना है तो टू लाइन्स which are non-coplanar, you can call skew lines. Non-coplanar lines which neither intersect each other, आगे जाएंगे तो भी ये दोनों को अगर बढ़ाएंगे आप इधर या उधर, they will not meet, neither intersect nor parallel, such lines will become skew lines. Now theorem number 6, next theorem, we will state in that theorem the distance between such two lines. तो आपको क्या दिया जाएगा? उनके इक्वेशंस, पहला इक्वेशन, पहली लाइन वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन r bar is equal to a bar plus lambda b bar। पहली लाइन है तो यहाँ पर a1 बार b1 बार ले सकते हैं आप, दूसरी लाइन है तो जनरल वेक्टर r बार तो रहेगा ही, इधर a2 बार प्लस लैम्बडा की जगह आप दूसरा कोई स्केलर ले सकते, a2 बार b2 बार। इधर लैम्बडा लिए तो इधर भी लैम्बडा ले सकता, या फिर कोई और म्यू। This distance is given by the two lines are passing through the 2 points, एक है मान लो A, दूसरा है B, एक का पोजीशन वेक्टर a1 बार, दूसरे का a2 बार। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, line number 1 passes through the point A having position vector a1 bar and it is parallel to the vector b1 bar. Line number 2 passes through the point suppose B having position vector a2 bar and parallel to the vector b2 bar. इस तरह की सिचुएशन दी है।
तो यहाँ जो वेक्टर ए बी बार बनाएंगे हम, दिस इज नॉट द डिस्टेंस. डिस्टेंस मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. एक जगह ऐसा रहेगा कोई ना कोई सेगमेंट जहाँ पर वो सेगमेंट L1 को पैरेलल और L2 को पैरेलल, दोनों लाइंस को पैरेलल रहेगा. सपोज दिस इज दैट सेगमेंट. You can denote it by segment PQ. तो इसको हम बोल सकते हैं डिस्टेंस. यहाँ परपेंडिकुलर रहेगा लाइन नंबर 1 को, तो Q इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू लाइन L2. That is the shortest distance, length of the perpendicular. So this is what we have to find, PQ. वो डिस्टेंस का फॉर्मूला इस तरह का बनेगा. ए बी बार अगर फॉर्म करते हम A2 बार माइनस A1 बार, इसका डॉट प्रोडक्ट B1 बार क्रॉस B2 बार के साथ, and you have to divide this by its magnitude. ये कैसा, इसका भी प्रूफ बोलो, एक्सप्लेनेशन बोलो, हम यहाँ दे सकते. Now the two lines L1 and L2 are passing through the 2 points, capital A having position vector A1 bar and capital B having position vector A2 bar. They are parallel to B1 bar and B2 bar respectively. If we form vector A, B bar, it will be position vector of B, मतलब A2 bar minus A1 bar. अब यहाँ this PQ bar is perpendicular to, PQ बार को भी डायरेक्शन दे देते तो वेक्टर बन जाएगा. पर PQ बार इज परपेंडिकुलर टू लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 बोथ. ओके, it is the shortest distance. PQ is the shortest distance. PQ is the shortest distance between the two lines. जिसकी हमको लेंथ निकालना है. अब ये देखो, PQ bar is perpendicular to line L1 and L2 both. L1 is parallel to B1, L2 is parallel to B2 bar. B1 bar is parallel to L1, B2 bar is parallel to L2. अब L1 L2 दोनों को परपेंडिकुलर रहने वाला जो वेक्टर है, इट इज PQ बार. PQ बार बोलो या QP बार बोलो, that vector is perpendicular to L1 and L2 both, means it is perpendicular to B1 bar and B2 bar both. PQ bar is perpendicular to
L1 bar and L2 bar both, इसी का मतलब होगा PQ bar is perpendicular to B1 bar and B2 bar both, but perpendicular to B1 bar and B2 bar both, such vector is always the cross product of B1 bar and B2 bar. This is perpendicular to B1 bar and B2 bar both. So can you give the relation between these two vectors? How are they? PQ bar and B1 bar cross B2 bar. How are they? PQ bar is perpendicular to B1 bar and B2 bar both, ऐसा बोल रहा हूँ. But perpendicular to these two vectors B1 bar and B2 bar is always given by B1 bar cross B2 bar. तो ये जो PQ bar है और B1 bar cross B2 bar है, how are they? They are parallel. When the two vectors are parallel, then one vector is a scalar multiple of other. So PQ bar is some scalar multiple of B1 bar cross B2 bar. अब ये जो perpendicular length है, it can be called as the projection of this vector AB bar on PQ bar. Now this length PQ is the projection of AB bar on PQ bar. Projection of one vector on another vector. Definition उसकी, it is a scalar quantity, length. अब प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर कैसे निकलते हैं आपको मालूम है? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, इसको डिवाइड करेंगे हम कौन से मैग्नीट्यूड से? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर ऑन विच द प्रोजेक्शन इज ड्रॉन. PQ बार की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो. तो यहाँ पर आपको दिखेगा, अच्छा लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए इसको मॉड में भी रखना चाहिए. AB बार मीन्स A2 बार माइनस A बार A1 बार डॉट PQ बार मीन्स B1 बार क्रॉस B2 बार. K टाइम्स चाहे तो लिख सकते हैं आप. डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या रहेगी? K टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. B1 बार क्रॉस B2 बार की मैग्नीट्यूड K टाइम्स, K कैंसिल हो के क्या बचेगा वहां? आगे लिख सकते हैं हम A2 बार माइनस A1 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार. डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार. हो सकता है ऊपर वाला डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए, तो हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू. सो दिस इज द, अच्छा यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखना है. इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी.
Now if these are the two lines, then this is the distance between the two lines, formula for the distance. अब यहाँ पर this distance will become 0 under which condition? ये तो मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकती, रहा तो 0 रहा तो ये 0 हो सकता, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर that will be 0. So this distance becomes 0, distance between the two lines becomes 0, and in that case the two lines will intersect each other. The lines will be intersecting in that case. तो रिमार्क्स में हम इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन लिख सकते हैं. If the lines which are given by these vector equations ये फॉर्मूले में लैम्बडा और म्यू का कोई रोल नहीं, केवल a1 बार a2 बार b1 बार b2 बार इनका रोल. If the lines given by these equations are intersecting, अब स्क्यू लाइन्स है तो इंटरसेक्टिंग तो रहेंगी नहीं. This distance is for any two lines. Intersecting lines के लिए distance between them is 0. तो ये क्वांटिटी 0 होगी, मतलब न्यूमरेटर 0, a2 बार माइनस a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार. इसमें कितने वेक्टर्स इंक्लूड है? 1 2 3. इसको तीसरा वेक्टर बोल सकते हैं आप. a बार डॉट b बार क्रॉस c बार जैसा, एक प्रकार से वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है. उसका आंसर 0 अगर दिखता है तो such two lines will intersect each other. Distance between them is 0. लाइन्स अगर तुम वेक्टर फॉर्म में नहीं लेते, उनके कार्टेशियन इक्वेशंस लेते हो. इफ द लाइन्स, पहला इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखते हैं आपको पता है. पहली लाइन x minus x1 passing through the point x1 y1 z1 and parallel to the vector having some direction ratios. वही डायरेक्शन रेशियोज लाइन के बनेंगे. लाइन L1 ABC ले सकते, लेकिन दो लाइन है तो फिर A1 B1 C1, दूसरे लाइन के लिए A2 B2 C2. तो पहली लाइन ऐसी ले सकते हैं हम, x माइनस x1 अपॉन कितना A1 is equal to y minus y1 upon b1 is equal to z minus z1 upon c1. If the lines first and second x minus x2 x2 y2 z2, this is the point through which the second line passes.
parallel to the vector having direction ratios a to b to c2. ठीक है. If the lines are intersecting, मतलब distance between them 0. Distance between them is 0 means the scalar triple product 0. वहां पर scalar triple product is given by determinant, जिसमें 3 rows रहेगी 3 वेक्टर्स में से. पहला वेक्टर a2 बार माइनस a1 बार, ab बार x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. डायरेक्ट लिख रहे हैं हम. ए से बी तक का वेक्टर का तैयार करते हैं आप तो x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k. वहां से ये रो हो जाएगी तैयार. b1 बार इट विल बी a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k. तो a1 b1 c1 सेकंड रो. a2 b2 c2 third row. So this scalar triple product must be 0. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर चेक करना तो आप इस कंडीशन का यूज कर सकते हैं. अगर आपको दो इक्वेशंस दिए हैं तो अब कौन से फॉर्म में दिए दैट इज इमटेरियल. वन फॉर्म इज ट्रांसफरेबल टू अनदर. जैसे इस पर से आपको वेक्टर इक्वेशन मिलाना है तो passing through each point x1 y1 z1 parallel to each vector having direction ratios a1 b1 c1 a1 i plus b1 j plus c1 k. और a बार लिख सकते x1 i plus y1 j plus z1 k. तो r बार इज इक्वल टू a1 बार प्लस लैम्बडा टाइम्स b1 बार. वेक्टर इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू Cartesian equation. Cartesian equation can be converted into vector equation. So these are the two remarks on this point. Distance between the two lines, two skew lines. उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. तो उसमें क्या दिया जाएगा आपको, फिर से इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस. इसके पहले जो टू लाइंस हमने लिए थे उसमें और इसमें क्या फर्क. they were skew and these are parallel. पैरेलल लाइंस के इक्वेशंस लेना है तो सेवन नंबर का थ्योरम. द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस whose equations are पहला r bar is equal to the line is passing through the point A, suppose having position vector a1 bar and it is parallel to the vector b bar. पहली लाइन नंबर 1 passing through the point A, position vector a1 bar parallel to the vector b bar. दूसरी लाइन पैरेलल अगर लेना है तो दिस लाइन विल बी अगेन पैरेलल टू द सेम वेक्टर. दूसरा b बार यहाँ लेने की जरूरत नहीं. द टू लाइंस आर पैरेलल
and hence both of them will be parallel to the same vector. इधर b1 बार उधर b2 बार ऐसा लेने की जरूरत नहीं, b1 बार b2 बार दोनों या तो इक्वल रहेंगे नहीं तो स्केलर मल्टीपल रहेंगे, इसलिए यहाँ का वेक्टर सेम अगर दिखता है तुमको तो सच लाइंस आर कंसिडर्ड एज पैरेलल लाइंस. पासिंग थ्रू द पॉइंट वाला वेक्टर अलग रहेगा, लैम्बडा इधर तो इधर म्यू रह सकता, लेकिन ए वेक्टर सेम. These are two parallel lines. The distance between such two lines is given by the formula becomes distance is always positive. a2 बार माइनस a1 बार वेक्टर तो रहेगा ही, डॉट में यूनिट वेक्टर अलोंग दिस b बार. b कैप लिखे हमने, इसका मतलब b बार डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. देखते हैं हम प्रूफ. सेकंड लाइन है, पासिंग थ्रू द पॉइंट b हैविंग पोजीशन वेक्टर a2 बार. तो इसको अगर ज्वाइन करते, डिस्टेंस बिटवीन देम यहाँ से परपेंडिकुलर निकालो, bm इज परपेंडिकुलर टू लाइन नंबर 1, तो वो बनेगा डिस्टेंस जो हमको निकालना है. नाउ दिस एंगल कैन बी ट्रीटेड एज थीटा. इस थीटा की ये बनती अपोजिट साइड. साइन थीटा अगर लेते तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, bm अपॉन ab. ab की लेंथ निकाली जा सकती है, तो यहां लिखेंगे हम द लाइंस r bar is equal to a1 bar plus lambda b bar and r bar is equal to a2 bar plus mu b bar. r passing through a and b. a का पोजीशन वेक्टर a1 बार एंड b का पोजीशन वेक्टर a2 बार. ड्रॉ bm perpendicular to line L1. So what will be a b bar, position vector of b minus position vector of a. इसकी मैग्नीट्यूड वो बनेगी लेंथ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a2 बार माइनस a1 बार. इसमें एंगल BAM अगर सपोज करते थीटा, so what will be sin theta? Opposite side upon hypotenuse. BM is equal to
हम डिस्टेंस बोल सकते, इट बिकम्स ए बी इंटू साइन थीटा। ए बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार। अब थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी बार एंड ए एम बार, and AM bar is nothing but the vector parallel to B bar। तो B बार जितना है मैग्नीट्यूड उसकी, उतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर यहाँ से तैयार कर सकते हैं हम। तो ये दोनों पैरेलल होने के कारण यू कैन से दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी बार एंड बी बार। दोनों बी बार बोलो या यूनिट वेक्टर अलॉन्ग बी बार बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पर साइन थीटा तो ऑलरेडी है ही, इंटू 1 अगर तुम लिखते, इस 1 को हम बोल सकते मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग बी बार। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप means 1, AB means magnitude of AB bar into sin theta, वहाँ तो है ही, where B cap means unit vector along B bar और B bar divided by its magnitude। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगी। तो इसको हमने रीराइट किए ऐसा। क्यों रीराइट किए? क्योंकि इसका एक स्पेशल मीनिंग है। कौन सा मीनिंग है? इसमें थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। और जब भी आपके पास में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स है, तो इसको बोलते हैं हम ए बार क्रॉस बी बार की मैग्नीट्यूड। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार क्रॉस ए बी बार क्रॉस बी कैप। क्योंकि यहाँ का जो थीटा है दैट इज नॉट ओनली द एंगल बिटवीन ए बी बार एंड ए एम बार बट ऑल्सो इट इज द एंगल बिटवीन ए बी बार एंड बी कैप। Since theta is the angle between AB bar and B cap, AB बार का मतलब A2 बार माइनस A1 बार क्रॉस बी कैप। बी कैप अगर नहीं लिखना है तो क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। दिस विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो बनेगी लेंथ बी एम। लेंथ बी एम मीन्स इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स। These are the 3 points depending on the distances. And exercise 6.2 we have to discuss
तो 6.2 का हमने एग्जाम्पल नंबर 1 लिखे यहाँ पर। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर drawn from the point P. Distance of the point from the line. Equation of line is given in Cartesian form. Point is also given in Cartesian form. Our formula is in vector form. So you can easily write the given point and the given line in vector notation. What is the given point? उसको P से अगर डिनोट करते तो 2, -3, 1, these are the coordinates. As far as position vector is concerned, जिसको हम अल्फा बार से डिनोट करते तो वो बनेगा 2i - 3j plus 1k कैप्स। उसके बाद में हम ए बार और बी बार ये दो वेक्टर्स के बारे में सोचेंगे। व्हाट इज द गिवन लाइन? The given line is passing through the point x1, y1, z1, मतलब -1, 3, -1। x + 1 को हम x - -1 बोल सकते हैं। यहाँ y - y1 का फॉर्म तो है ही, y1 की जगह 3 है। इधर z - -1 है +1। These numbers are called ABC, means direction ratios of that line. तो b बार बनेगा 2i + 3j - 1k। So line passes through the point A whose coordinates are -1, 3, -1. So what will be A bar? -1i + 3j - 1k caps। -i + 3j - k। उसके बाद में बी बार के बारे में क्या बोलेंगे हम? द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, जिसको हम बी बार से डिनोट करते, इट विल बिकम 2i + 3j - 1k। ठीक है। Now वेक्टर अल्फा बार - a बार तैयार कर लो। अल्फा बार - a बार, वन वेक्टर माइनस अनदर वेक्टर एज ए के फॉर्म में मिलेंगे। 2i - 3j + 1k माइनस a बार मीन्स -i + 3j - k कैप्स। 2i - - +1i
3i, minus 3j, minus 3j, that will be minus 6j, k minus minus plus k, 2k cap. इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, निकाल लो। अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 36 प्लस 4, that is 49. Square root of 49 is 7. ठीक है। Then we want b bar. मैग्नीट्यूड ऑफ b bar भी चाहिए आपको। मैग्नीट्यूड ऑफ b bar लिख लो, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, 4 plus 9 plus 1, root 14. Dot product of these two vectors alpha bar minus a bar dot b bar, इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वो भी चाहिए। जो जो चाहिए वो तैयार कर लो पहले, बाद में हम फॉर्मूला लिखेंगे। इसको आप यूनिट वेक्टर बी कैप भी बोल सकते, फिर डॉट प्रोडक्ट बी कैप का यूनिट वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट अल्फा बार माइनस ए बार के साथ लिए डायरेक्ट। तो 3 इंटू 2 डायरेक्ट लिखो, या फिर ये वेक्टर्स वहां शो कर सकते हैं आप, फिर डॉट प्रोडक्ट बना सकते हैं। हम डायरेक्ट लिखेंगे 3 इंटू 2 प्लस कितना, माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1। व्हाट इज द आंसर? a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. Formula for scalar product, dot product. 6 minus 18 minus 2, 6 minus 20, that is minus 14. So the distance length of perpendicular from the point, उसी का मतलब distance of the point P having position vector alpha bar from the line is Pm, which is given by square root of अल्फा बार माइनस ए बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दो, कौन सा स्क्वायर, अल्फा बार माइनस ए बार डॉट बी बार अपॉन बी बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अल्फा बार माइनस ए बार की मैग्नीट्यूड आई है 7, उसका स्क्वायर माइनस अल्फा बार माइनस ए बार डॉट बी बार, that is root 14, नहीं, that is minus 14 अपॉन रूट 14 बी बार की मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर
तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस ए स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा, रूट फोर्टीन एक कैंसिल होकर रूट 14 का स्क्वायर बचेगा, मतलब 14 हो जाएगा। और उसका आंसर बनेगा कितना? 35, and the answer will be root 35. This is the distance of the point P from the line, means length of the perpendicular drawn from the point P to the line L. So the use of this first formula we have explained, in which distance of a point from the line is stated. Distance of the point, distance between the two skew lines. Skew lines means non-coplanar. कोप्लेनर में दो चांसेस, या तो इंटरसेक्टिंग, उसमें डिस्टेंस कुछ भी रहेगा नहीं, जीरो होगा, या फिर पैरेलल लाइन में का डिस्टेंस इट इज गिवन बाय दिस क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। तो देखते हैं हम इसका यूज कौन से एग्जाम्पल में हो रहा। 6.2 का find the shortest distance between the lines, नंबर 3 वाला एग्जाम्पल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, उनके इक्वेशंस क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं हम। यहाँ एग्जाम्पल आप बुक से देख सकते हैं। द गिवन लाइंस आर, इक्वेशंस उनके नोट कर लेंगे। पहला आर बार इज इक्वल टू, दूसरा ओ बी आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा ए बार के फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन सिंपल फॉर्म। पहले लाइन के लिए आर बार दिया है उसने 4i माइनस से a1 बार, 4i माइनस जे a1 बार है, प्लस लैम्डा टाइम्स b1 बार। b1 बार की जगह लिया है i प्लस 2j माइनस 3k। ये हो गई पहली लाइन। एंड व्हाट इज द सेकंड लाइन? आर बार इज इक्वल टू, उसने लिया पहला वेक्टर i माइनस जे प्लस 2k, i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स, लैम्डा की जगह उसने म्यू लिया, चलता है, कोई भी स्केलर ले सकते। i प्लस 4j माइनस 5k कैप्स। तो इक्वेशंस का यूज करके हम वहाँ ए बार क्या है, बी बार क्या है, ए बार मतलब a1 बार, a1 बार, a2 बार, these are the 2 points through which the lines are passing। 4i माइनस जे a1 बार, a2 बार i माइनस जे प्लस 2k। उसके बाद में द लाइन्स आर पैरेलल टू दिस वेक्टर्स, ये दोनों अलग अलग है, मतलब दीज आर नॉट पैरेलल लाइन्स। यहाँ वेक्टर्स अगर सेम दिखते
So they are parallel to the same vector, means they will be parallel lines. यहाँ पर b1 बार b2 बार अलग अलग है. b1 bar is given by I plus 2j minus 3k. b2 bar I plus 4j minus 5k. Now, for finding the distance between the two lines, you have to first form a2 bar minus a1 bar. कौन कौन से वेक्टर्स आपके पास होना वो पहले हम नोट कर लेंगे. a2 बार माइनस a1 बार, ये कौन सा वेक्टर बनता है? i माइनस j प्लस 2k माइनस a1 बार मीन्स 4i माइनस j. i माइनस 4i कितना? माइनस 3i माइनस j प्लस j 0j 2k माइनस 0k यानी 2k. दिस इज a2 बार माइनस a1 बार. उसके बाद में हमको और एक वेक्टर तैयार करना पड़ता, b1 बार क्रॉस b2 बार. द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला अगर देखते आप, नॉट पैरेलल लाइंस, तो उसमें b1 बार क्रॉस b2 बार की मैग्नीट्यूड चाहिए. तो वो पहले वेक्टर निकाल लो, बाद में मैग्नीट्यूड निकालो. ये डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए, वो भी निकालेंगे. बाद में सीधा फॉर्मूला यू कैन यूज. b1 bar cross b2 bar, it is given by the determinant, जिसकी फर्स्ट रो रहती है हमेशा i के, सेकंड रो फ्रॉम b1 बार मतलब 1 2 माइनस 3, थर्ड रो फ्रॉम b2 बार 1 4 माइनस 5, i इंटू कितना? माइनस 10 माइनस 12, माइनस माइनस प्लस 12 होगा, माइनस j इंटू माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस k इंटू 4 माइनस 2 माइनस 10 प्लस 12 कितना होगा? 2 2i कैप माइनस 2 इंटू माइनस j प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप. दिस इज द वेक्टर b1 बार क्रॉस b2 बार. इसकी मैग्नीट्यूड भी नोट कर लो. स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 12 2 रूट 3. नाउ डॉट प्रोडक्ट a2 बार माइनस a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार. आप चाहो तो ये दो वेक्टर्स यहाँ पर लिख सकते, बाद में फिर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3. या फिर यहाँ पर देखो, पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर यहाँ है, तो डायरेक्ट a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स माइनस 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2.
-6 + 4 -2. So after getting this dot product and this magnitude, we apply the formula. The distance between such two skew lines is given by is given by, उसको डिनोट कर सकते हैं आप डी से या पी क्यू से या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। पहले फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट ऑफ A2 बार माइनस A1 बार एंड B1 बार क्रॉस B2 बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार। तो इसका आंसर आया अपना -2। ये है कितना 2√3। तो आंसर होगा 1/√3 डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। तो लाइंस अगर मान लो वेक्टर फॉर्म में नहीं दी, x - x1/a1 इज इक्वल टू y - y1/b1 z - z1/c1, दोनों लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में अगर दी है तो वहां पर ए बी दो पॉइंट्स कार्टेशियन फॉर्म में, उसका यूज करके फिर उनके पोजीशन वेक्टर्स नोट कर सकते हैं हम। और पैरेलल टू द टू वेक्टर्स b1 बार b2 बार वो भी लिख सकते हैं। और बाकी की प्रोसीजर फिर सिमिलर है। यू कैन यूज द सेम फॉर्मूला, कार्टेशियन फॉर्म हो या फिर वेक्टर फॉर्म हो। Lines are given in Cartesian form in example number 4। लाइंस ऐसी नहीं दी तो उनका कन्वर्शन हम वेक्टर फॉर्म में कर सकते, या नहीं भी किए तो भी हम A1 बार A2 बार पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स नोट कर सकते। B1 बार B2 बार भी आपको मिल सकते और आगे की कार्रवाई पूरी। अब इसमें अगर मान लो ये शॉर्टेड डिस्टेंस 0 आता, ये 0 तभी आता जब न्यूमरेटर 0 रहता था। ये तो 0 नहीं हो सकता बिकॉज दिस टू आर नॉन जीरो वेक्टर्स। तो न्यूमरेटर 0, तो by computing, by finding the distance between the two lines, determine whether the lines are intersecting or not। Conclusion, इसका अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे आपको, determine whether these two lines are intersecting or not, intersecting or नॉट। नॉट का मतलब वो पैरेलल रह सकती है या फिर स्क्यू लाइंस रह सकती। पैरेलल तो यहाँ है नहीं, मतलब है स्क्यू लाइंस रहेगी। डिस्टेंस 0 नहीं आया, दैट मीन्स
दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, ऐसा कंक्लूजन अगर पूछा तो। अगर 0 आया तो दे आर इंटरसेक्टिंग। 0 के लिए आप सिर्फ इतना चेक कर सकते हैं। इसका आंसर अगर 0 आया तो यू कैन डायरेक्टली से that the distance between the two lines is 0 and hence the lines are intersecting। मैग्नीट्यूड वगैरह निकाल के डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पी क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख सकते लगे तो 0 अपॉन दैट मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 0। तो एक्सरसाइज में इस टाइप के एग्जांपल्स और दिए हैं आपको, सॉल्व एग्जांपल्स, और ये हमने बताया आपको एग्जांपल्स, इनका यूज करके बाकी एग्जांपल्स आपको आते हैं क्या वो आपको चेक करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अनुसार आपको फॉर्मूला यूज करना है। कंप्लीट करो 6.2। थैंक यू।